Okay, sir. Yeah. Okay, sir. So, students, today we will talk about a very important topic in your syllabus, pre-PhD course, and the topic of today is the Human Genome Project. I will cover two topics in this lecture. So, my first topic is Human Genome Project. So, let's start. So, first of all, you know, tell me what is the genome? How can you define genome? So, I think unmute yourself. I start with Neetu Pandey. Yes, Neetu, unmute yourself and tell me what is genome. Neetu, where is Neetu? Anybody else? I am asking to all of you. जीनोम क्या है, जीनोम कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तभी तो हम प्रोजेक्ट समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम, राइट. सो जीनोम होता क्या है ये बताइए आप, Sir, बताइए set of ऑल genes. ऑफ यू. Set of genes, okay, very good, well said Ralakshmi. Anybody else, anybody else? Sir, Sir, complete sir, set of sir, DNA, sir. the genome Sir, is the haploid number complete of set of chromosomes present in any cell. genetic information Haploid in number of an chromosomes. organism. One by one. What you are saying, Meenakshi, tell me. Meenakshi, tell me. Sir, Meenakshi, sir, genome is the sir complete set of genetic information in an organism. yeah. More correct, more correct. And anybody? Yes. Sir, Anuj, in a short form, sir, complete set of DNA is called Haploid genome. set of chromosomes. very good. Sir, haploid set of chromosomes present in any cell of any Correct. Very organism. correct. Yeah. Very correct. So, as you know, that you all defined the genome term, and as you heard that Anuj Kumar had very correctly said that haploid set of the set of chromosome, right. So you can see that the genetic material of an organism which comprises of DNA, or it can be RNA, for example in RNA viruses. So RNA can be the genetic material. So the genetic material of the organism which comprises of DNA, or it can be RNA, such as in RNA viruses, it is known as genome. Or you can very correctly haploid of the chromosome is known as genome. For example, in sperm, a haploid set of chromosome. In ovum, haploid set of chromosome. So we can say that the sperm, that is male gamete, carries a haploid set of chromosome, that is a genome. It represents genome, right? So that in case of that DNA is organized in form of chromosomes very well, as you know, all of you know. And in haploid organism, for example, archaea viruses in certain organelles like the mitochondria, chloroplast,
So in genome, in these all consist of single, circular, or linear chromosome. And in sexually reproducing diploid organism, the genome consists of a two full sets of chromosome in a somatic cell. Got it? Two full sets of chromosomes in a somatic cell. So you can say that the gametes of a diploid organism contain half the number of chromosomes due to reduction division, and therefore some organism may be triploid, tetraploid, pentaploid, etc. So they have multiple sets of chromosomes. So it can be concluded that the term genome therefore refers not only to the DNA present in the nucleus known as nuclear genome, but also to the DNA stored in mitochondria and chloroplast, which is known as the mitochondrial genome and the chloroplast genome. And sequencing the genome of an organism, the second question is that sequencing, right? So sequencing the genome of an organism refers to the determination of the order of the nitrogenous bases in DNA by using well that the aim of the HGP क्या डिटरमाइन करना था, पूरा का पूरा सीक्वेंस जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको पूरा जो है, जो पूरा डीएनए बनाते हैं, सभी जीन्स जो इसमें पाई जाती हैं, सभी का कंप्लीट सीक्वेंस को डिटरमाइन करना था. ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम. एंड therefore we can say this was the world largest कोलेबोरेटिव बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट. इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका बहुत बड़ा बजट था, बहुत पैसे इसमें अरबों खरबों लगे इसमें, ठीक है. और ये जो है दिस HGP is considered the world's largest collaborative biological project because one country cannot perform such type of big project. So that बहुत सी कंट्रीज, करीब 50 कंट्रीज, more than 50 countries collaborated to perform, to determine the complete sequence of nucleotide base pairs in human being. So this idea, when arose this idea? This idea behind HGP, it was picked up in 1983 here by US government.
when the planning started, and the project was formally launched in 1990. This was the year when the launching of the HGP was done, and it was complete. The project was declared as it is complete. Now it is complete in 2003. So that it started in 1990 and the project completed in 2003. So you can say that it took how many years? About 13 years, because in 1988, next slide, that there is a history behind HGP. So you can see here I have described the term genome and as well as some important points. So human HGP, actually it originally aimed to map the nucleotide contained in a human haploid reference genome, right? Human haploid reference genome. So genome of any individual, or it may be plant or animal, it is very unique. Mapping the human genome involves sequencing the genome of a small number of individual and assembling these together to get a complete sequence for each chromosome, right? So it can, you can see that the first of all sequencing involves the splicing of the DNA, and then assembling these all together to get a complete sequence for each chromosome. So what was the goal of the human genome project? First of all, the to identify and map all 20,000 to 25,000 genes, approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA from a physical and functional standpoint. That is identification as well as mapping of these genes. Next, to determine the sequence of the 3 billion chemical base pair. Imagine, human DNA contain 3 billion chemical base pair, 3 billion chemical base pair. And to store the information in form of data,
all autosome, or you can say that somatic chromosome, जिसपे somatics genes पाई जाती हैं, तो इन्हें हम autosome कहते हैं. And we can the chromosome which carries the sex related information, these are known as sex chromosome. इन्हें allosomes भी कहते हैं. ये X and Y होते हैं. You can see here that the very well, these are all human chromosomes, including 22 autosomes and 2 sex chromosomes. So here you can see the picture. You know, great scientist Watson and Crick. So, you know, Watson and Crick in May 1953, you know, published their paper, and he discovered that DNA is the genetic material of all living being. And these two scientists with Wilkins were awarded Nobel Prize, you know, in 1962. So Watson and Crick, you can see the picture, and ये मॉडल है जो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं पिक्चर में. और ब्रिलियंट डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी. इसके बाद में जो फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी की और मॉलिकुलर बायोलॉजी, होता ही नहीं कुछ भी अगर 1953 में ये अगर ब्रेक पे हैं. और जो मॉलिकुलर बायोलॉजी आज है वो कभी होती ही नहीं अगर ऐसा कोई, ये दोनों जो आप देख रहे हैं दो पर्सन, कितना इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन्होंने किया और कितनी इंपॉर्टेंट इनकी डिस्कवरी थी, जिसपे आप देख सकते हैं सब कुछ बेस्ड है बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आरएफएलपी, क्या क्या टेक्निक्स जो आई हैं, सभी टेक्निक्स जो है बिकॉज ऑफ दीज टू पर्सन कि इन्होंने जो है ऐसा अचीवमेंट किया. ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक. दिस was the year 1999 to December. This is the Journal of Science Nature, and you can see the date to December 1999. The date where the you know issue of this journal, very famous journal, was published, and in this the first human chromosome sequence was reported, right? So now participating countries and funding agency, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें इतने सारे कंट्रीज से, मतलब 20 यूनिवर्सिटीज से ज्यादा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया. रिसर्च सेंटर्स थे बहुत से, यूनाइटेड स्टेट्स से, यूनाइटेड किंगडम से, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, चाइना. सो दीज ऑल सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स एंड यूनिवर्सिटीज, यू नो, ये सीक्वेंस जो है सीक्वेंसिंग परफॉर्म की गई. एंड यू नो कहानी कैसे स्टार्ट हुई कि ये 1990 में जो दो फंडिंग एजेंसी थी यूएस की, एक तो था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनआईएच, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. तो ये दोनों, ये there were two major funding agency, and these two agencies developed an you know memorandum of understanding in order to coordinate plans and set the clock for the initiation of the HGP. इन्हीं दोनों ने इनिशिएट किया और इन्होंने जो है इसको कैसे हम
एग्जीक्यूट करें, कैसे प्लान करें, किस तरीके से इसको हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए, इन्हीं दोनों एजेंसी, क्योंकि मेजर फंडिंग इन्हीं से हुई थी, तो इन्होंने इस चीज को प्लान किया और एक तय गाइडलाइंस के तहत ही जो है इन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। सो दैट इसमें ऐसा नहीं था कि ये दोनों ही थे। 20 यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च सेंटर्स which were from United States of America, United Kingdom, Japan, France, Germany, Canada, and China. And a parallel project was conducted. Who conducted this project? Outside the government sponsorship. एक private project भी parallel conduct हुआ, और ये किसने किया? सेलेरा कंपनी थी, सेलेरा कॉर्पोरेशन और सेलेरा जीनोमिक्स ये कंपनी थी, और ये कंपनी लॉन्च हुई थी 1998 में, और इस कंपनी ने भी इसको कंडक्ट किया, ये पैरेलल प्रोजेक्ट था। और ये जो कंपनी थी वो जो है इसने भी फाइंडिंग्स अपनी की, और जिससे क्या हुआ, बहुत सी जो है चीजें जो है वो जानकारी मिली, और इसको सीक्वेंसिंग में ही जो है इसने काफी कुछ जो है वो नई चीजें इसने निकाली, नई टेक्निक भी इसने इसमें इनकॉर्पोरेट की। सो दैट यू कैन सी द इनिशियल, यू कैन सी 3 बिलियन प्रोजेक्ट। बजट जो था वो क्या था? 3 बिलियन प्रोजेक्ट जो है वो था 1990, और इसको दोनों ही एनआईएच और डीओई ने इसको लॉन्च किया 1990 में। देन स्टार्टिंग फंडिंग हुई 1990 में, और फिर क्या था कि ये जो है लगातार डीएनए सीक्वेंस जो था पूरा एंटायर यूक्रेमेटिक ह्यूमन जीनोम को, वो लगातार इनिशिएट हुआ 1990 से, और बहुत से इसमें देखिए यहाँ पे फंडिंग दी गई है, और इसमें जो है हियर यू कैन सी यूएस ह्यूमन जीनोम एचजीपी फंडिंग कैसे हुई। देखिए बजट बढ़ रहा है यहाँ पे, यू कैन सी हियर दैट ये जो है यहाँ से 88-89 है ना स्टार्टिंग में हुआ, बट ये 2 साल तो हम आपको बेसिक जो शुरुआत ये यहाँ से मानी जाती है 1990 से। और फिर देखिए यहाँ पे डीओई और एनआईएच both contributed, both funded this project, right? So that यहाँ ये पूरा बजट यहाँ पे दिया गया है, और कितना जो है पैसा इसमें यूएस डॉलर में यहाँ पे इसमें लगा, ये पूरा एक यहाँ पे एक डेटा है। So that pioneers who were the pioneers in HGP, Robert Shinshipper proposed the idea of sequencing the human genome project in ह्यूमन जीनोम इन ईयर 1985। उन्होंने सीक्वेंस कर सकते हैं ऐसा कहा, लेकिन फिर बाद में चार्ल्स डेलिसाई एंड डेविड स्मिथ प्रपोज द बजट फॉर एचजीपी। देन प्रेसिडेंट रीगन के समय पे 1988 में यूएस कांग्रेस ने इस एक्ट को पास किया। पहले एक्ट पास हुआ, देन उसके बाद में फंड जनरेट हुआ, फंड की व्यवस्था की गई। देन जेम्स वॉटसन headed the NIH genome program, and then Francis Collins succeeded James Watson in 1993 as the overall project head and director of the NIH. After James Watson, Francis Collins came as the project head as director of NIH, right? सो बाद में इस एनआईएच जो था इसका नाम चेंज हो गया, और इसको चेंज करके इट नाउ बिकेम एनएचजीआरआई, दैट इज नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो एक पीएचडी स्कॉलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज, इन मई 2000 जिम केंट, he developed a software jig assembler, and this software allowed the publicly funded human genome project to assemble and publish the human genome sequence. So Jim Kent, he was a PhD scholar from University of California, so developed a software. Now timeline, if you can see the timeline, so first of all
credit goes to Frederick Singer, because Frederick Singer in 1970 developed a technique for DNA sequencing and known as Singer's method of DNA sequencing. Singer's method ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, ये आज भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है। हम डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं, किस ऑर्डर में नाइट्रोजनस बेसिस लगे हैं, किस ऑर्डर उनका अरेंजमेंट क्या है, उस सीक्वेंस को हम पता लगा सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में। देन इन 1985 रॉबर्ट सिंसीपर at UCSC, the University of California, Santa Cruz, proposed the idea of sequencing the human genome. Then 1986, US Department of Energy, जिसको ऑलरेडी बोल चुके हैं हम, DOE और and National Institute of Health, NIH, came forward to fund the SGP. So funding came from these two important institute, that is DOE and NIH. Later on, in 1989, UK Medical Research Council, that is MRC, also joined this huge project, that is Human Genome Project. Now, in 1990, HGP was officially launched with James Watson as its project director. He was the first project director of this project, and first gene to be mapped was BRCA1. This BRCA1 is the gene for breast cancer. Now in 1993, first 5-year plan for HGP was published, and Sanger Institute UK of UK, it also joined this Human Genome Project. In 1994, HGP's human genetic mapping goal was achieved. Later on, in 1995, Genetic Privacy Act was passed, and first bacterial genome was sequenced, that is Haemophilus influenzae. So this was the first bacterial genome, and in 1996, first human gene map was published, right? And East genome was sequenced in this year, and also Human Genome Project's mouse genetic mapping goal was achieved. यानी यहाँ पे जो है ईस्ट का भी हुआ सीक्वेंसिंग, माउस का भी पूरा कंप्लीट मैप तैयार हुआ, और पहला ह्यूमन जीन मैप भी पब्लिश्ड हुआ 1996 में। नाउ 1997 में क्या हुआ, एनआईएच का नाम चेंज हुआ, और एनआईएच जो है वो इसका नाम चेंज हो गया NHGRI, यानी कि नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद में आफ्टर दिस in 1997, E. coli genome was also sequenced, and then actually Genoscope, that is French National Genome Sequencing Center, was established, and in 1998 second 5-year plan for HGP was published, right? Then बहुत से सेंटर्स देखे डेवलप हुए उसी समय पे। यहाँ पे जापान में सेंटर ये डेवलप हुआ जिसका नाम था राइकेन जीनोम सर्विस सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड, एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक निमेटोड है, राउंड वॉर में है, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, इसका जीनोम कंप्लीटली इट वाज सीक्वेंस्ड इन 1998। इसके बाद में क्या है, चाइना भी बहुत सारे सेंटर, जैसे संघाई में जो है, बीजिंग में ये सेंटर जो है एस्टैब्लिश हुआ। 1990 में 1999 में क्या है, क्रोमोसोम 28 कंप्लीट हुआ, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन नेचर। 2000 में इनमें क्या था कि वर्किंग ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम इट वाज कंप्लीटेड, एंड यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन एंड यूके पीएम ब्लेयर सपोर्ट free access to genome information. He allowed the free access of this information obtained from the Human Genome Project. So, in this year, the genomes of Drosophila melanogaster and Arabidopsis thaliana, which were sequenced and published in Nature. 2001, working draft of Human
genome sequence was published in the Nature and Science. And then 2002, working draft of mouse genome sequence was completed and published. In year 2003, it completed the version human genome sequence was complete, and it was that this project was ended with the achievement of all its goal. So this was the timeline of human genome project. Now, what are the technical aspects behind this? The process of the determining the human genome first involve genome mapping or characterization of the chromosomes, and this is known as genetic map. Next step is what? Next step is DNA sequencing or determination of the order of the DNA bases on a chromosome. These are the physical maps. नाउ मैपिंग स्ट्रेटजी क्या थी कि यहाँ पे जो है जो जेनेटिक मैप था, ये जो है क्या था, इट शोज द relative locations of these specific markers on the chromosomes, and an example of marker includes the बहुत important है और ये कहलाता है restriction fragment length polymorphism RFLP. एंड यहाँ पे क्या था, restriction enzymes जो है वो यूज किए जाते हैं, और these enzymes what you can know very well, and you can tell the role of these chemical scissors, and these chemical scissors recognize short sequence of DNA and cut them at specific sites. यानी कि ये जो enzymes होते हैं वो DNA के पर्टिकुलर और स्पेसिफिक जगह पर जाकर के कट करते हैं और उसको अलग कर देते हैं. सो इसका मतलब ये है कि डीएनए को हम कई छोटे छोटे हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं, और ये जो डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनको हम फिजिकल मैप में बनाने में उनको यूज करते हैं. So that RFLP, that is restriction fragment length polymorphism, it reflects the sequence differences in DNA sites, which are spliced by the restriction enzyme. Now, sequencing strategies of human genome project. So first of all, अब amplification होना चाहिए, और एम्प्लीफिकेशन सीक्वेंसिंग करने के लिए जरूरत है हमें कि डीएनए जो भी है उसका एम्प्लीफाइड होगा, वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तभी हम उसकी वी should increase the quantity of the DNA. So that is, it must be first be amplified, right? And so there are two types of DNA amplifications. One is cloning and second is PCR, that is polymerase chain reactions. So if DNA has been amplified, then sequencing can be started. So sequencing technique which were used in human genome project were these two techniques. कौन सी टेक्निक हैं जो कि इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज की गई थी? सीक्वेंसिंग टेक्निक्स हैं, और ये जो सीक्वेंसिंग टेक्निक हैं वो हैं शॉर्ट गन सीक्वेंसिंग मेथड, और दूसरा था सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड. शॉर्ट गन सीक्वेंसिंग मेथड ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस था इस प्रोजेक्ट के जस्ट जो है इसके पीछे, और सेंगर्स टेक्निक. सो हम लोग इसको समझते हैं कि क्या है शॉर्ट गन मेथड, क्या होता है. देखिए पिक्चर में यू कैन understand the picture and what is going on in this picture, that this is the genomic DNA, and in this the DNA is fragmented randomly into several small segments. ये देखिए बहुत सारे इसमें इसको जो है वो fragments के छोटे छोटे तैयार किए गए हैं, and each DNA fragment then sequenced using the Sanger's method. Okay, so the resulting fragments, इन्हें जो ये fragments हैं इन्हें कहते हैं reads,
और उसके बाद में आफ्टर मेनी राउंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेशन सीक्वेंसिंग आर परफॉर्म विच गिव्स द मल्टीपल ओवरलैपिंग रीड्स। ये जो ओवरलैपिंग यहाँ पे मिले, ये ओवरलैपिंग जो एंड्स होते हैं जो डिफरेंट रीड्स के, उन्हें हम असेंबल करते हैं, उनको कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस बनाते हैं, एक जगह पे अरेंज करते हैं बाय सम कंप्यूटर प्रोग्राम। और उसके बाद में फिर ये जो है इनको असेंबली, जब जब इनकी असेंबली हो जाती है तो एक जीनोम सीक्वेंस हमें मिल जाता है। तो ये एक की टेक्नोलॉजी थी पूरे जो है इस तरह की ये जो टेक्नोलॉजी है ये पूरे एचजीपी की बहुत ही मेन टेक्नोलॉजी मानी जाती है। अच्छा, ये भी एक फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बहुत जल्दी से रिजल्ट इसमें आते हैं और ये जो है कम एक्सपेंसिव है। तो इसलिए जो है क्या था कि जो सेलरा जीनोमिक्स थी, इसने टाइम से पहले ही जो है वो सभी सीक्वेंसिंग को कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इस शॉटगन मेथड में कि ये जो है थोड़ा एरर प्रोन है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो सीक्वेंस हैं उनकी गलत अगर असेंबली हो जाती है तो क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था और ये सेम वही डिस्क्राइब्ड है यहाँ पे कि हियरार्कियल शॉटगन सीक्वेंसिंग जीनोमिक डीएनए, देन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है, बहुत ही स्टेबल होते हैं एंड यू नो दे कैन क्रिएट contiguous map and then sequence each contiguous with shotgun approach, then alignment उनका होता है। और फिर ये जो है एक लाइन जब हम उनको कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग है, देखिए ये ओवरलैपिंग कर रहा है, इसको ठीक किया जाता है, एंड टू एंड जो है कनेक्ट किए जाते हैं, सो इट विल जनरेट द final sequence. So that this was in this approach क्या यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे डीएनए पहले कट किया गया और अबाउट 150 मेगा बेसिस में फ्रेगमेंट्स में, फिर उसके बाद उसको अरेंज किया गया ओवरलैपिंग कॉन्टिगुअस फ्रेगमेंट्स में, और फिर ये जो कॉन्टिग्स थे उन्हें कट करके बहुत छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में किया गया, फिर उनको सीक्वेंस किया गया कंप्लीटली। मतलब क्या था कि बड़े सीक्वेंस को छोटा किया गया और फिर छोटे छोटे सीक्वेंस को उसको सीक्वेंस उसका जनरेट किया गया, क्या उसका सीक्वेंस है, फिर बाद में उसको एक साथ में जोड़ दिया गया। तो ये था ये हायरार्कियल शॉटगन अप्रोच। एक दूसरी अप्रोच भी जो है सेलरा जीनोमिक्स ने किया, और सेलरा जीनोमिक्स ने जो अप्रोच ये की, ये क्या था, होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग। और होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग में क्या था कि इट वाज दिस टाइप ऑफ अप्रोच वाज डन बाय a private company Celera Genomics, and you can see here कि इसमें जो है क्या होता है कि इसमें जीनोमिक डीएनए को फ्रेगमेंट्स इनको तैयार करते हैं। You can shear the genomic DNA into small pieces, then the fragmented DNA is cloned into plasmid and sequenced on both strands. So once the sequences are obtained, they are aligned and assembled into finished sequence. इसमें छोटे छोटे सीक्वेंस बार बार करते नहीं है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो हम स्मॉल पीसेस में जब करते हैं, कट करते हैं और फिर उनको कंप्लीटली सीक्वेंस कर देते हैं। यानी कि जो है यहाँ पर जो है हम बहुत उनको स्मॉल पीसेस में और करते करते नहीं चले जाते हैं, यहाँ पे होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग होती है। तो ये मेथड जो है इस प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया गया। यहाँ पे डिफरेंस है कि स्ट्रेटेजी दोनों तरफ की कौन सी थी। देखिए एचजीपी की जो प्रोजेक्ट थी, जो कि गवर्नमेंट उसको फंड कर रही थी, जो कि हायरार्कियल इसको कहते हैं शॉटगन सीक्वेंसिंग, और ये क्लोन बाय क्लोन सीक्वेंसिंग थी। तो थोड़ा सा ये इसमें था कि ये एक्सपेंसिव तो थी, महंगी थी, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक, but it was more accurate. But in case of Celera Genomics company, it performed whole genome shotgun sequencing, but this technique was faster and it was less expensive, but it was prone to errors. This was the disadvantage behind this technique. So here you can see the difference between these two techniques.
are given. So this now Senger's method, that the DNA is sequenced through the Sanger method, that is also known as Sanger sequencing, and it was low through output but accurate. It can handle up to 1000 base pair, but this technique is still standard for small scale laboratory use. अभी भी जो मॉलिकुलर बायोलॉजी की जो लेबोरेटरीज हैं उसमें अभी भी जो है इस टेक्निक को यूज किया जाता है और इस टेक्निक को हम अभी भी परफॉर्म करते हैं। अब इसमें कंपोनेंट क्या होने चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से इसमें देखिए लिखा हुआ है। ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये कंपोनेंट हैं, देखिए डीएनए पहले होना चाहिए आपके पास में जो भी इसको सीक्वेंस करना है। फिर प्राइमर होने चाहिए, प्राइमर जो है बहुत ज़रूरी है, सो दैट प्राइमर जो है वो ज़रूरी है फॉर टू स्टार्ट दिस सीक्वेंसिंग, प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसिंग। इसके बाद में फ्री न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, कौन कौन से, विच अलाउ द एक्सटेंशन ऑफ द डीएनए चेन, तो ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए। और ये सभी जो है क्या है, 4 टाइप के होते हैं। और 4 टाइप के कौन कौन से हैं ये जो है देखिए, ये आगे अभी आपको बताएंगे। फिर इसमें क्या चाहिए, फ्री न्यूक्लियोटाइड चाहिए दैट टर्मिनेट एक्सटेंशन, जो टर्मिनेशन करें, चेन को टर्मिनेट कर दें, खत्म, रोक दें, स्टॉप कर दें, तो दैट ये चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो कि डीएनए की चेन को बनाए, डीएनए यानी कि पॉलीमराइजेशन ऑफ द चेन विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज टेक प्लेस, सो दैट ये भी एंजाइम हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सेंगर्स मेथड जो है वो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा हम आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग इसको इसको जो है हम आगे बढ़ाते हैं। What you use underscore. रबड़ लगा लिया था इसमें। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है सर हाँ। आपकी। नहीं बेटा, वीडियो में आवाज आ सर रही है बोल ही आपकी? नहीं रहे हैं। जी जी, हाँ? आ गई। मुझे लगा ना Yes, मेरा sir. थोड़ा नेटवर्क इंटरप्ट हो गया था सर, इस वजह से। ओके ओके, तो वो ओके। एक्चुअली वीडियो की आवाज, हमने एक क्लिप है छोटी सी, उसको अच्छा टेक्निक को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा उसको सर, सुने। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, थैंक यू। ओके।
तो बच्चों आपने देखा, आप सभी लोगों ने सीक्वेंसिंग इसमें बताई गई है जी जी और पूरी तरीके से आपने, मैं फिर से जरा सा थोड़ा सा बैक करके और इसको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है, जो सेंगर्स टेक्निक है, इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। जिसने क्या किया, देखिए बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया क्या था इसके पीछे, देखिए बहुत सिंपल वे में समझिए आप। देखिए सेंगर जो है वो एक ऐसा साइंटिस्ट था, 2 बार ही गॉट नोबेल प्राइज 2 टाइम्स। एंड यहाँ पे जो है क्या था कि एक बार तो उसने इंसुलिन को सीक्वेंस किया, प्रोटीन था, तो प्रोटीन तो बड़े मॉलिक्यूल हैं, उनकी सीक्वेंस करना तो थोड़ा आसान है, लेकिन डीएनए समझिए, डीएनए को सीक्वेंस भी करने के लिए दिमाग जो है देखिए उसने लगाया, एंड ही यूज्ड डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। क्या थे, अब इसमें समझेंगे हम इनको, क्या थे ये। देखिए ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, 1 sugar, 1 nitrogen base and phosphate group. This is known as nucleotide. And then if you can remove the phosphate group from here, then the remaining component will be considered as nucleoside. So यहाँ पे जो है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस आना चाहिए। इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सेंगर ने क्या किया कि यहाँ समझा इस चीज को कि जो शुगर का मॉलिक्यूल है उसमें पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 3, ये दोनों ही जो है यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। और इसमें कहा कि अगर ये इस शुगर मॉलिक्यूल में ये 2 नंबर का OH नहीं रहता है तो ये कहलाता है डीऑक्सी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और फिर इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर जो है आगे कहा कि ये जो है जब डीऑक्सी है, और इसमें क्या होता है कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ OH ग्रुप नहीं होता है। और फिर क्या होता है, ये सबस्ट्रेट का काम करते हैं, किसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज के लिए। तो फिर इन्होंने जो है एक बात ये कही कि ये जो है जब पॉलीमराइजेशन यहाँ पे करते हैं, जैसे ये देखिए, अब इस वाले फिगर में देखिए, ये जो है फिगर है जिसमें ये पोजीशन नंबर 3 वाला OH है, और यहाँ पर जो है क्या होता है, ये 3' का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ डीएनए पॉलीमरेज जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा उसके साथ में यहाँ पे इसको जोड़ देता है, ज्वाइन कर देता है। तो ये OH ग्रुप देखिए, अब ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। फॉस्फेट ग्रुप जो था वो इसी के साथ में ये यहाँ पे इसका बाइंडिंग बना देता है। काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर ऐसा करता है, देखिए ये यहाँ पर जो है ये इसके साथ में आराम से बॉन्डिंग, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ये यहाँ पे अटैच हो गया, और ये यहाँ पे अगला न्यूक्लियोटाइड इसके साथ में जुड़ गया। देखिए लेंथ इसी तरह से बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन Sengers were very smart, and he imagined that if 3OH group is absent, अगर यहाँ का 3OH ये ग्रुप एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा, चेन जुड़ेगा, नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इफ OH 3-OH group is absent, then this chain will be terminated here, यहां से रुक जाएगी। तो जब यहां से रुक जाएगी, अगला ही जो है हम अगला जब न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच ही नहीं होगा तो ये चेन यहाँ पे रुक गई। अब रुक गई तो हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये पूरी सीक्वेंस कहाँ पे रुकी, कहाँ स्टॉप हुई, सीक्वेंस का एंड क्या क्या था। तो ये जो है इन्होंने कहा कि जब ये अटैच होगा ही नहीं, अगर 3OH ग्रुप इज एब्सेंट होगा तो क्या होगा, देयर विल बी नो एडिशन ऑफ न्यू nucleotides in the polynucleotide chain, and then reaction would finally be terminated or stop. So he used this method. ये देखिए टेक्निक का इन्होंने इस्तेमाल किया, और इन्होंने जो है इस तरीके से इन्होंने ये किया कि इन्होंने
ये तो डीऑक्सी किया OH जो ग्रुप होता है, लेकिन इन्होंने एक और जो है न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल किया दैट कंटेन दिस न्यूक्लियोटाइड इज डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. Deoxy, one OH group is absent, deoxy. If both OH group, position number 2 and position number 3, if both are absent, if both are removed, then such nucleotide is known as a di-deoxynucleotide. So here you can see that this is the template DNA. टेम्पलेट है. अब इसमें क्या था कि ये जो है यहाँ पे इसको जो है इन्होंने 4 ट्यूब्स में ये यहाँ पे डिवाइड किया. ईच ट्यूब कंटेन सम इंपॉर्टेंट ए प्राइमर. फिर क्या था, इन्होंने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स इन्होंने ATGC ये डाले, इन्होंने ये यूज किए. और फिर इन्होंने DNA पॉलीमरेज फॉर पॉलीमराइजेशन, चेन की लेंथ को बढ़ाने के लिए. देन उसके बाद में फिर क्या किया इन्होंने, वन रेडियो लेबल्ड di-deoxynucleotide, very low concentration. He put one radio labeled di-deoxynucleotide along with these all components at this di-deoxynucleotide was at very low concentration. So यहाँ पे जो है आगे इन्होंने देखिए ये किया ऐसे कि यहाँ पे उसी जैसे ट्यूब 1 में है तो डाई-डीऑक्सी ये एडेनोसिन वाला यूज किया इन्होंने, यहाँ पे डाई-डीऑक्सी TTP है ना, थाइमिन, फिर यहाँ ग्वानिन, यहाँ साइटोसिन. तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे यूज ऐसा किया. अब ये देखिए आगे जो है क्या था, ये यहाँ पर जो है अब ये क्या हुआ, जैसे ये चेन पॉलीमरेज कर रहा है, ये सब सारे जोड़ रहा है, लेकिन जैसे ही ये डाई-डीऑक्सी यहाँ पर चेन में आएगा वैसे ही क्या होगा कि यहाँ पर चेन जो है वो क्या होगी, टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे आगे सीक्वेंसिंग नहीं होगी. सो दैट वी कैन यहाँ पे हम ये रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ पे सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं. और इस तरह जैसे ये यहाँ पे प्राइमर है. अब यहाँ पे जो है ये डाई-डीऑक्सी आ रहा है, देखिए यहाँ डाई-डीऑक्सी जब आ रहा है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो लेंथ है वो हम ये कहाँ पे होगा, यानी कि ये कैसे होगा, यानी फिफ्थ, यहाँ पे देखिए फिफ्थ है, फिफ्थ नंबर, 5 बेसेस हैं, तो यानी कि ये फिफ्थ बेस क्या होगा, ये वाला A होगा, यानी एडेनिन होगा. यहाँ पर क्या 13वां बेस A होगा, 13 बेस, 10 बेस. इस तरह से यहाँ पे हमने चेन की लेंथ को पता लगा लिया. फिर इसको पेज पे ले गए, SDS या ऑटो टू रेडियोग्राफी में ले गए, और फिर हम इसको क्या हुआ, हमने एक्सरे फिल्म तैयार की, और एक्सरे फिल्म तैयार करने पे हमने जो है इस तरह सीक्वेंसिंग की, है ना. इस तरह से जैसे नंबर 1 है, क्या है नंबर 1, 2, ये देखिए ट्यूब 1 में हमने एडेनिन यहाँ पे इस्तेमाल किया था, तो ट्यूब 1 में ये देखिए डाई-डीऑक्सी ATP था, तो यहाँ पे AA हो गया. फिर उसके बाद नंबर 2 वाली ट्यूब में क्या था, यहाँ पे थाइमिन था, डाई-डीऑक्सी. तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए जैसे जैसे बढ़ेगी, अब देखिए 2-3 नंबर पे क्या है, यहाँ पे G है, ठीक है, G वाला है, ठीक, 3rd नंबर, तो ये यहाँ पे G होगा, ठीक. इसी तरह से ये जो है चेन इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी. थोड़ा सा नई जो थोड़ा इसको रिफाइन और किया गया, वो तो ओरिजिनल टेक्निक थी, क्लासिकल टेक्निक थी. मॉडर्न टेक्निक में क्या करते हैं, एक थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दे, इसको और चेंज कर देते हैं. हम इसमें क्या करते हैं, हर एक डाई-डीऑक्सी जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ में एक फ्लोरेसेंट एक यूज कर देते हैं, यानी कि एक फ्लोरेसेंट से और भी क्लियरिटी ये हो जाती है कि ये जो एक्सरे फिल्म यहाँ पे आ रहे थे ये फ्लोरेसेंस इसमें आ जाता है. जैसे इसमें यहाँ पे येलो है, तो येलो यहाँ पे डाई-डीऑक्सी, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड को किया, एडेनिन को जो डिनोट करता है, तो जो ये ट्यूब 1 एडेनिन वाले होंगे वो इस कलर से जो है इसमें फ्लोरेसेंस अपीयर होगा. सो दैट बहुत ही इजिली हम इसको जो है समझ सकते हैं और पता लगा सकते हैं. तो ये टेक्निक थी. अब हम लोग जो है थोड़ा सा ये भी टेक्निक बताई गई है. यहाँ पर जो है सेम उसी तरह से 4 इसमें एक ट्यूब्स तैयार किए गए, +1 डाई-डीऑक्सी इसमें मिलाया गया हर एक में, और फिर वो जो है देखिए टर्मिनेट ये कर रहा है. यहाँ पे जो है देखिए ये चेन टर्मिनेशन हो रहा है. फिर इसको क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ले जाते हैं, और सीक्वेंस जो है हम इस चीज को डिटरमाइन कर लेते हैं. आउटकम क्या आया,
आउटकम की बात कर लेते हैं. So what was the outcome of Human Genome Project? So outcome was that it was concluded that the number of protein coding genes in human being कितनी है, 22,300 जीन्स हैं जो कि प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं. पहले जो रिपोर्ट थी वो क्या था कि 1 लाख जीन्स हैं प्रोटीन कोडिंग जीन्स, इतनी जीन्स. अब नहीं. The outcome of Human Genome Project was that there are approximately 22,300 protein coding genes हैं, यानी फंक्शनल जीन है, और बाकी का जो डीएनए है वो जंक डीएनए है, जंक डीएनए. ठीक. एंड यू नो इफ यू कंपेयर विद द रैट, अदर मैमल, जैसे माउस का अगर कर ले, माउस में कितना था, माउस में जो है वो 23,000 जीन्स अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन बीइंग में कम है, 22,300 कोडिंग जीन्स हैं. ड्रोसोफिला में देखिए 17,000 जीन्स अप्रोक्सीमेटली. सी एलिगेंस, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, राउंड वॉर्म में 22,000 से कम जीन्स हैं. तो इस तरीके से हम ये जो है वो हम एक इंक्लूड कर सकते हैं. कंक्लूडिंग ये इसमें रिमार्क है, अ लार्जर पोर्शन ऑफ आवर जीनोम encodes the transcription factors which is dedicated to control element, that is enhancers, to which these transcription factor bind. And you can see that the combinatorial use of these elements provide much greater flexibility of gene expression, which is found in Drosophila and Caenorhabditis elegans, that is this roundworm. So here you can see that the size of the human genome 3.2 giga base pair, number of genes एक रेंज निकाली गई 30,000 to 40,000. नाउ इट इज डिक्रीज, नाउ और डिक्रीज हो गई है. कंपोजिशन क्या था इसमें जो है 28% ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए, ओनली 1.25% ट्रांसलेटेड प्रोटीन, 45% ट्रांसपोजन जंपिंग जीन्स हैं, 3% स्मॉल रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसैटेलाइट, वीएनटीआर एटसेट्रा. 5% डुप्लीकेशंस हैं ऑफ लार्ज जीनोम सेगमेंट्स. ठीक है. अब इसमें क्या है कि जीसी रिच सीक्वेंस में दे हैव अ हायर डेंसिटी ऑफ जीन्स. So gene density, if you look at the gene density, तो क्या होगा इसमें 23 genes per million base pair on chromosome number 19 and 5 genes per million base pair on chromosome number 13. So you can see that human and most vertebrates, they have genes not found in invertebrate animal, for example like Drosophila, C elegans. एंड फॉर एग्जाम्पल फ्यू ऑफ दीज जीन्स, कौन सी जीन जो इसमें नहीं पाई जाती, जैसे एंटीबॉडीज एंड टी सेल रिसेप्टर फॉर एंटीजन टीसीआर, ट्रांसप्लांटेशन एंटीजेंस ऑफ मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एमएससी जीन है, एचएलए जीन है, ये नहीं होती है. तो इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन जीन ओवरऑल क्या है 2% केवल एक्सॉन्स हैं, यानी कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, और 98% जो है वो क्या है इंट्रॉन्स हैं, यानी नॉन कोडिंग रीजन्स हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 2% तो एक्सॉन हुआ कोडिंग सीक्वेंस है, लेकिन 98% जो ये जंक जिसको हम कह रहे हैं, बट दिस जंक डीएनए इज नॉट एक्चुअली जंक. व्हाट मींस that it performs a vital role in transcription and translational regulation of protein folding. So this is an important character of this 98% of introns, because this cannot be considered as actually junk DNA, because it can perform a vital role in transcription and translational regulation of protein folding. So here you can see genome size is not directly related to its biological complexity. मिथ जो थी वो टूट गई. अब देख सकते हैं यहाँ पे कि
यहाँ पे देखिए माउस, देखिए माउस है, माउस मस्कुलस 22,500 30,000, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 19,000, ये देखिए अरेबडोसिस थैलियाना 25,000, राइस 46,050 से लेकर के 55,600 जीन्स हैं इसमें। ह्यूमन बीइंग बताया तो जाता है कि 20 से लेके 25,000 जो टोटल है, 25,000 एग्जैक्ट नंबर है। तो जीनोम साइज कैन बी कैलकुलेटेड दैट जीनोम साइज इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। एप्लीकेशन क्या था? एप्लीकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि दिस जीनोम द आउटकम ऑफ द ह्यूमन एचजीपी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिजीज कॉजिंग जीन्स and also identification of mutations linked to different forms of cancer also took place. So it holds many benefits for in many fields, from molecular medicine to human evolution. And the sequence of the DNA, it remains stored in databases available to anyone on the internet. You can see all the sequence of the DNA is available freely, open access to all. And United States NCBI, that is National Center for Biotechnology Information, acronym is NCBI. This organization, it has the information, it has the gene sequences in form of a databases known as gene bank. And this gene bank actually, it has the entire databases of the finding of the human genome project, as well as sequence of the all other vertebrates. And it has also the sequences of a databases of sequence of known and hypothetical genes and protein. So human genome project will also allow for advances in agriculture through genetic modification to yield healthier, more disease resistant crop. And it has also benefited the advancement of forensic science. So there are some future challenges of HGP, that is continue sequencing to close the gap of various pupil among in the world, and large scale identification of regulatory region, and completing the catalog of human variations from sequence to function. These are all future challenges. These are yet to be understood. And medical applications of the human genome project, so that we can say that all the outcome will facilitate, and you can see that it helps in the medical field. For example, it will trace out some important genetic component of some disorder, for example, diabetes, asthma, cancer, mental illness, which where these multiple genetic and environmental factors, they interact to each other. So using the techniques, we can say that it can measure the expression of thousands of genes at a time. So human genome project was one of the breakthrough in this molecular biology. And it has a lot of applications, lot of advantages. And in case of molecular biology, in the field of molecular biology, for example, it is helpful to which can measure the expression of thousands of genes. And differences in the gene expression that are associated with them, for example, the ability to respond to different drugs or pathological states. So these are all important findings of human genome project. So as you know, that this was all about human genome project. So uh, can we conclude, or can we start one more topic? All of you, just I am Yes, sir. stop. Yes, yes. Yes, Can we sir. start one more topic? Because I have 16 minutes.
So Sure, sir. we can start. Yes, sir. Okay, sir. Hmm? So I can share one just quickly. I am sharing my screen, and to complete the second topic is DNA. थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बड़ा था, तो करें क्या? तो इसको जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट कर देते हैं. देखिए, या सभी को दिख रहा है? सभी को दिख रहा है बट स्क्रीन पे? Yes. या Yes. Yes, sir. sir. yeah. So I will finish it within time. The next topic is DNA barcoding, and this topic is very important from your research point of view, because in uh, in modern science, actually the taxonomy is now changed, and this taxonomy is now known as DNA taxonomy. So आप जाते होंगे कहीं, आप मॉल में, तो आप क्या होते हैं, कोई सामान लेते हैं तो एक बारकोड होता है. So that person, just आप देते हैं, you give that, आप मटेरियल कुछ भी परचेज कर रहे हैं, then that person scans the tag, or you can barcode, which is present on your item, and then उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, कब ये जो है यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन उसी बार कोड में आ जाती है, या QR कोड हम कहते हैं, उसी में आ जाती है. बस यही यहाँ से ये जो टेक्निक है वो 2003 में इसको डिस्कवर किया गया. देखिए, इसका जो संबंध है वो क्या है कि यहाँ पर इस टेक्निक को थोड़ा सा जो है, पहले क्या था, मार्फोमेट्रिक एनालिसिस हम लोग करते थे. मार्फोमेट्रिक एनालिसिस जब टैक्सोनॉमी में किया जाता है कि लेंथ है, विड्थ है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, उसको जो है सारा डेटा हमने, कोई भी स्पीशीज मिलती है तो उसको हम देखते हैं, और देख करके फिर हमारे पास में जो डेटाबेसेस ऑलरेडी है, उस डेटाबेसेस से we compare this new species, new characteristic features with the those species which are available in form of databases from the literature, और फिर उसको हम एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से जो है हम वो डिफरेंट है, कौन से कैरेक्टर्स में ये टोटली डिफरेंट है. बट दिस टेक्निक, दैट इज बार कोड, you can say it is a technique in which species identification is performed by using DNA sequences. यहाँ पे डीएनए लेवल की बात की गई है. हम जीनोम का, उसके जिस स्पीशीज का जीनोम में एक छोटा सा टुकड़ा लिया, डीएनए सीक्वेंस का किया हमने, और उस सीक्वेंस को हमने जो अवेलेबल डेटाबेसेस हैं दूसरी स्पीशीज से हमने उसको स्टडी किया, देखा कि वो नया है, न्यू है, so that we can say that this is the new species or species novo. So this DNA barcoding actually is a technique where the species identification is done, and it uses the DNA sequences from small fragments of the genome with the aim of contributing to a wide range of ecological and conservation studies in which traditional taxonomic identification is not practical. कहीं कभी कभी क्या होता है कि जो मैंने बताया आपको टेक्निक, जो ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी है, जैसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बिकॉज in traditional taxonomy, what we did collection. We collect the parasites from a site. For example, it may be a freshwater site or marine water site, and then finally we preserve these all parasites, and we draw a diagram taking length, width, etc., all morphometric analysis, and then finally we study that this species, how this species is different from others which are available, already reported by someone.
So this was the traditional taxonomy. Here there was no concern with the DNA, but now DNA barcoding is it is directly related with the DNA sequences. So this technique uses short DNA sequences, and these are known as DNA barcodes कहते हैं, इन्हें DNA barcodes कहते हैं, which ranges from 400 to 800 base pair, right? So quickly, yeah, this is the method of species identification using a short section of DNA from a specific gene or genes. So so birth, when it was discovered, the idea behind this technique was of Dr. Paul D. N. Harbert. He is considered as the father of the DNA barcoding. He discovered this method, that with the help of this technique we can perform the species identification at molecular level, that is by the identification of the DNA sequence. Now successful DNA barcode, that is, it should be short enough to be quickly sequenced, छोटे होने चाहिए, easily identified in all species of organisms, variable enough to provide a unique sequence for each species. Size of sequence should be there, 600 to 700 base pair, and universality should be there. Now marker. So you can see that there are some marker for in organism group. देखिए अलग अलग हैं यहाँ पे. देखिए एनिमल्स में कौन, क्वाई, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फर्स्ट, साइटोक्रोम बी 12s 16s. देन प्लांट्स में डिफरेंट है, देखिए प्लांट में मैट के है, RBCL है, ये सब सारे सीक्वेंस, ये मार्कर्स जीन है. बैक्टीरिया में क्वाई ए भी यहाँ यूज किया जाता है, 16s भी यहाँ पे किया जा रहा है. फंगाई में क्या है, ITS है ना, इंटरस्पर्स ट्रांसक्राइब सीक्वेंसेस हैं. देन उसके बाद ये 18S भी है यहाँ पे. प्रोटिस्ट में ITS है, क्वाई है, ये 18S है, 28 है. ये क्या है, दीज आर द मार्कर जीन, राइट. सो मार्कर जीन क्या है, जिससे हमें पता लगता है, जिनका सीक्वेंस हमें टारगेट करना होता है, ठीक. तो अब यहाँ पे क्या है कि देखे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सब यूनिट फर्स्ट, यदि इसको क्वाई भी कहते हैं, है ना. इट हैज बीन प्रपोज्ड एज द यूनिवर्सल मार्कर फॉर स्पीशीज, लेकिन ये यूनिवर्सल है नहीं, जान लीजिए. मैं आपको बता दूं कि जो दिस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सब यूनिट किया गया कि स्पीशीज लेवल पे आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन ये जो है क्या है, ये यूनिवर्सल मार्कर अब नहीं रहा, क्योंकि आपने अभी पहले वाली जो आपने देखा, इसमें देखा आपने बहुत सारे और भी दूसरे मार्कर्स यूज किए जाते हैं प्लांट्स में, फंजाई में, तो यूनिवर्सल नहीं है इसमें. सो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है क्वाई, ये मिलता कहाँ पे है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मिलता है, राइट. सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये मिलता है, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन एट द टू गेट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन. क्यों, वाई वी यूज क्वाई? That is, mutation rate is very fast. Standard reason, enough to distinguish closely related species. This is one of the important factor. It lacks insertion और deletion नहीं पाए जाते हैं. Greater differences among species, copy number, है ना, इसलिए ये यूज किया जाता है. बहुत ही few differences, एक species के अंदर ही, मतलब एक one genera contain many species, so within species बहुत ही कम differences हैं, इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से क्वाई यूज किया जाता है. दिस इज क्वाई, दिस इज क्वाई सीक्वेंस. ये है, ये मार्कर है, कहाँ पे लोकेटेड है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे. ये पूरा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ये पार्ट देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फर्स्ट. ये जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंट था. पॉल हर्बर्ट ने इसी को कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जो है इन्होंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट मार्कर टू आइडेंटिफाई स्पीशीज by studying the DNA sequences, that is this mitochondrial DNA. So nuclear DNA and mitochondrial DNA, there are some differences. So nuclear DNA inside reside in the nucleus. Here mitochondrial DNA found in the mitochondria of each cell.
यहाँ पे क्या है, ये कहाँ पे है, 2 sets of 23 chromosomes, each mitochondria may have several copies of single mitochondrial molecule। ये क्या है इसमें, और इसकी मैटरनल भी पैटर्नल भी, यहाँ पे जो है क्या है, हेयर, बोन, टीथ, है ना, एविडेंस कुछ भी हम ले सकते हैं। इसके बाद डबल हेलिक्स है, यहाँ नो रिकॉम्बिनेशन, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप, यहाँ पे ये फ्री ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप है, सर्कुलर है, यहाँ पे ये क्रोमेटिन पैक्ड है, यहाँ क्रोमेटिन पैक्ड नहीं है। खास बात क्या है, न्यूक्लियर डीएनए वर्सेस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक, क्योंकि मैटरनल और पैटर्नल डीएनए मिक्स हो जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आगे भी अगली स्लाइड में आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट मिक्स्ड क्रोमोसोम, बट यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ऐसा नहीं होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे वाई मोस्टली नॉन न्यूक्लियर डीएनए, बिकॉज दिस इज spermatozoon, this nuclear portion, this one, it enters inside the egg cell, and this mitochondrial remains outside the that vicinity. And finally the in the zygote, that only egg contributes mitochondria and mitochondrial DNA to zygote, means zygote contain only those mitochondria which comes from egg only, because माइटोकॉन्ड्रिया जो पैटर्नल था वो तो ऑलरेडी जो है वहां बाहर ही खत्म हो जाता है। तो इस वजह से इसमें क्या है, बहुत ही कम जो है इसमें एक हम कह लें कि वेरिएशंस मिलेंगे, और इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें ऐसी मैकेनिज्म है कि ये यहाँ पे अगर आता भी इसके अंदर, तो ये जो है ये डिस्ट्रॉय हो सकता था, ये इसका ये कोई हमारे मतलब का नहीं था। लेकिन चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो भी यहाँ मिलता है जाइगोट में, वो मैटरनल ओरिजिन का होता है, ना कि पैटर्नल ओरिजिन का, देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वाई इज नॉट ओनली, मैं बताया, आई हैव टोल्ड यू already that this is Kwai is not the only useful barcode marker, because in chloroplast nuclear genes represent the bio barcode marker for plant species in identification। ये देखिए ribosomal ITS for fungi, these are all for protist, and 16S ये सब जो है आर्के बैक्टीरिया के लिए यूज किए जाते हैं। सो ये है, ये हायरकी है, दैट इज डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सो स्पीशीज इज ये यूनिट है, और इस लेवल पे हमने जो है क्या था कि जैसे कहीं किसी कोई टैक्सोनॉमी ने टैक्सॉन को राइट किया, पब्लिकेशन किया, और फिर दूसरे ने उसको पढ़ा, तो क्या था कि उसने उसको पढ़ के और फिर कोई भी मैटर, कोई भी मटेरियल को या स्पीशीज को दूसरी जगह से कहीं लोकेशन से कलेक्ट करता है, तो वो क्या होता है, उस स्पीशीज को जो है यहाँ पे जो है क्या होता है कि जब पब्लिश कराता है तो एक सिस्टमेटिक कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये स्पीशीज वाकई में सिनोनिम है या अलग है, इस चीज को हम बहुत एक्यूरेटली बाय द हेल्प ऑफ क्वाई, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फर्स्ट की स्टडीज, जीन की स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है ये स्पीशीज हमारी कैसे अलग है। एक टर्म है डीएनए बारकोडिंग एंड डीएनए मेटा बारकोडिंग। देखिए एक सैंपल है यहाँ पे, एंड दिस sample contain the mixture of DNA, different types of DNA from different origin. For example, if it contain the mixture of algal cells, then it will it will have different types of DNA. So here we will amplify this DNA, right? And if there are mixture of different type of DNA, then finally we get the different types of species identification. But if we can if we amplify one type of DNA, so that DNA barcode is prepared, and this at this level only one species will be identified. But in meta barcoding, what happens, that there is mixture of species, and later on a particular species is taken out, and that species is interpreted and it is identified. Now DNA barcoding microbes में करीब देखा गया है, फंजाई में 1.5 मिलियन स्पीशीज फंजाई की हैं, बट 10% फॉर्मली डिस्क्राइब।
एंड इसमें जो है क्या है कि बहुत से जो है वो ये सीक्वेंसेस हैं जो कि मार्कर का काम करते हैं, जैसे इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर हैं, आईटीएस हैं, जीन सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। और दूसरे देखिए यहाँ पे सब जीनस पेनिसिलियम है, एस्कोमाइकोटा है, इन सभी में जो है पार्शियल इलोंगेशन फैक्टर 1 काम करता है, ये मार्कर की तरह से काम करते हैं माइक्रोब्स में। प्लांट्स में क्या है, मैंने ऑलरेडी ये बताया आपको, ये देखिए यहाँ पे मार्कर्स हैं, ये जीन्स जो है इनको हम मार्कर की तरह से यूज कर सकते हैं, बारकोड में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोसेस है, specimen, this is a specimen, then collection, we can take the tissue sample, then DNA is extracted, then later on PCR amplification, we amplify the DNA content, and then this sequence, then later on sequencing of the DNA take place, and a barcode is generated, right? So here what the process is given: sample collection means tissue sample, and a small tissue sample is collected, then DNA is extracted, it is purified, then you can see that it undergo PCR amplification and electrophoresis, and we analyze the DNA by gel electrophoresis, and then PCR results analysis here with the UV trans illuminator, and then later on sequencing and bioinformatics for species identification. That is, यहाँ पे जो है उस जो सीक्वेंस को एनालिसिस किया जाता है, और जैसे ब्लास्ट है उसको जो है अलाइनमेंट टूल्स होते हैं, उनको हम टेक्निक से, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टेक्निक से हम अलाइन करते हैं, फिर उसको बारकोड्स जनरेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 2013 तक का डेटा है, जो कि ये कंपोजिशन ऑफ डीएनए बारकोड लाइब्रेरी 2014 में किया गया। वर्टिब्रेट में इतनी स्पीशीज यानी 55,000 स्पीशीज को यहाँ पे लाइब्रेरी में तैयार किया गया। लैंड प्लांट यहाँ बारकोड तैयार किया, देखिए 100,000, फंजाई 10,000, ह्यूमन पैथोजन जूनोसिस 10,000, ठीक। इस तरह से यहाँ पे देखिए टेरेस्ट्रियल बायोसर्विलांस 100,000. So these are the barcode of these all species have been generated by these library. IBOL है इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ, बहुत बड़ा एक जीनोमिक इनिशिएटिव है, इसमें करीब 25 देशों के साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं और बारकोड को एक लाइब्रेरी जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इसमें जो है करीब 5 लाख स्पीशीज से ज्यादा जो है 5 मिलियन स्पेसिमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये फर्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन में था 2010 टू 2015 में। सीबोल है कंसोर्टियम फॉर बारकोड ऑफ लाइफ है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव 2004 में लॉन्च हुआ। इसका काम क्या है, टू डेवलप बारकोडिंग एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। ईसीबोल है यूरोपियन कंसोर्टियम फॉर द बारकोड ऑफ लाइफ। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव डेटाबेसेस एंड वी कैन इन्फॉर्म and we can report our databases with these all databases available as open access. So ये देखिए और है CCBD है, दिस कनाडियन सेंटर फॉर डीएनए बारकोडिंग, ये लार्जेस्ट फैक्ट्री मानी जाती, बारकोड फैक्ट्री से हम कहते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशन दैट इज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर पेस्ट एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट with the help of DNA barcoding, जिसको हम नॉर्मल जो ओल्ड टेक्सोनॉमी है उससे हम नहीं कर सकते। ह्यूमन हेल्थ, वी कैन आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर ह्यूमन डिजीज वेक्टर्स एंड रिजर्वायर होस्ट, एंड वी reconstruct the disease transmission pathway. We can assess and monitor vector borne diseases with the help of this technique. Now invasive alien species, so we can, with the help of DNA barcoding, we can identify and monitor alien species which can impact ecosystem and native species. They can destroy the native species, so we can identify these all alien species. Now endangered species, that is this technique improves the knowledge of taxonomy and ecology of endangered species. It can create a diagnostic framework to monitor and prevent their illegal harvest and trade. इन्वायरमेंटल में बहुत बढ़िया इसका जो है वो इसका मॉनिटर में यूज है, मॉनिटरिंग में, बिकॉज इट कैन सपोर्ट द माइनिंग, दैट इज ऑयल
gas, minerals and conservation, that is protected area, natural resources हमारे जैसे forestry, fisheries and agriculture sector to meet the environmental goals. And it can also help in the evaluation of the efficiency of the natural, that is resource management, restoration and mitigation resources. So these are all important, you can see the future data. अगर हमें ऐसा हो, इस तरह का ये बार कोडर हो और इस तरह से हमने स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया कि ये दिस बार कोडर इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन, that is information, all barcodes of the species, and we can identify that this species is different, this species is new to science. So we can develop a taxonomic GPS, and we can with the help of this taxonomic GPS we can discover a new species, so through the DNA barcoding. So this is all about from my side, and here we can conclude. So all of you, ठीक है, बहुत थोड़ा सा टाइम लगा सेकंड लेक्चर में, तो बहुत थोड़ा सा वो जल्दी मुझे खींचना पड़ा. ऑल ऑफ यू, ठीक है, आपने सुना. हाँ, नन्या पांडे, श्वेता मौर्य, हेम प्रभा, अमृता, नीतू पांडे, जेबा और अनुज, पूर्णिमा, सभी, राजलक्ष्मी, ठीक Yes, है. sir. हाँ, ठीक है. Yes, So sir. today in this lecture I have completed two topics of your genetics unit of genetics. आप लोग please I request you to open your camera and yeah, open, yes. Namaste, sir. नमस्ते सबको, Good नमस्ते भाई, evening, sir. सबको Sir, good नमस्ते. evening. गुड इवनिंग. अनुज कैसे हो? जेबा, जेबा, yes, Good Anamrita, evening, sir. Sweta, good evening, very happy good evening to all of you. नन्या पांडे, सालू सिंह, लेक्चर सुना आपने? कैसा लगा? कैसा लगा लेक्चर? पसंद आया आपको? समझ में आया? Yes, sir. Very Yes, informative. Yes, sir. Thank you so sir. much, Yeah, sir. so I will send the PDF copy of my lecture, so that you can study, and you can, this is very helpful, this will be helpful for your examination. जो एग्जाम होगा तो मैं आपको PDF इसमें सेंड कर दूंगा. ठीक है बेटा? Okay, Yes, sir. sir. ठीक है, ओके. नाउ यू कैन लेफ्ट मीटिंग, Thank you. एंड देन फिर हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो ठीक है. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. Thank you, Thank you sir. very much. Thank you, Thank you sir. so much, sir. Welcome.